So discussions of a DPP3 first questions, which is marked as a 14th questions. Electric field intensity at the center of the electric dipole, the one that is based on the classroom discussions, but answer is to be in the form of a dipole moment. So this is a minus q, this one is a plus q, and ask that what is the electric field intensity here. So due to the negative charge, electric field is in this direction. So let's mark it as an E minus. Due to the positive charge also, electric field is in this direction. So therefore, let's mark the midpoint as a. So therefore, we know that EO is equal to, that is a E minus plus it is a E plus. E minus and E plus magnitude wise both are, that is a KQ upon that distance square. Look at that, dipole length is a, so obviously the half length is a, so it is a KQ by a square. E plus is also KQ by a square, so 2 times, so it is a plus KQ by a square. So therefore it is a 2KQ by it is a square, but answer is required in terms of a dipole moment, so no problem. So dipole moment is equal to, that is a 2a into q, hence q is equal to, that is a p by 2a. So putting that q in this equations as a p by 2a, we get the answer as net electric field would be equal to then, what is it? It is a kp upon a cube. Okay, as far as its direction is concerned, the dipole moment is in this direction. Look at the arrow please in the diagram. Dipole moment, this is the diagram, this is the directions of a dipole moment, minus q to plus q, and net electric field is in this direction, that is the directions of this one. So if one want to show it exactly with a sign, so one can say that it is a negative one. So option A is the correct options, right? Next questions, 41 questions. Okay, bhai, there are two dipoles. Dipole moment is Coulomb centimeter. Look at that. The two dipoles, that is P1 equal to people, both are P1 equal to P2, both are having the same dipole moment, that is a 6.2 into 10 to the power minus 3, but Coulomb centimeter, cent is a 10 to minus 2, so multiply by 10 to minus 2 Coulomb meter. So it is a Coulomb meter, right? So it is equal to 6.2 into 10 to the power minus 5 Coulomb meter is the dipole moment. Okay, are placed on a line in such a way that their axes are in the same directions. Matlab, look at that, their axes are in the same directions. Okay, and the distance between the two is given. Look at that, suppose that this is a one dipole, that is a minus q plus q, having a dipole moment p1. This is another dipole, that is a minus q plus q, and its dipole moment is a p2, and the distance between them is marked as a r. Up say this is basically requiring a small derivations, which is basically not part of the curriculum. So therefore we accept the derivations directly. हम लोग वो डेरिवेशन सीधा ले लेंगे, और मैं आपको जो इक्वेशन दे रहा हूँ उसका डेरिवेशंस का कोई स्कोप नहीं है. जब दोनों डाइपोल ऐसे लगाए गए तो फोर्स बिटवीन दैम इज, ये डिराइव किया जा सकता है, इट्स अ डेरिवेशन, लेकिन ये स्कोप नहीं है. So that is a 6k p1 p2 divided by it is a r to the power 4. बस कुछ नहीं करना है. जब दो डाइपोल को इस तरह से लगाया गया, so that is a 6k p1 p2 upon r to the power 4. तो ये p1 p2 का वैल्यू लगाइए, r का वैल्यू आपको देख लीजिए, दिस इज a r वैल्यू, लुक एट दैट, दैट इज a 10 to minus 8. मैंने मार्क किया क्वेश्चन में, वो पुट कीजिए और आंसर लाइए. सो सॉल्यूशंस आंसर वुड बी बी होगा. ये बी कुछ होगा, दैट इज 2.07 इंटू 10 टू द पावर 34. ये कुछ आपको आंसर मिलने वाला है, 2.1 इंटू दिस. ठीक है, तो ये सर इसके साथ में एडिशनल इक्वेशंस दे रहा हूँ आपको. सो जस्ट टेक दैट एडिशनल इक्वेशंस एंड नोट इट डाउन इन योर नोट्स. ठीक है, नोट 2 में नोट कर लेना. क्या है, अगर समझो दो डाइपोल ऐसे लगाए गए, सपोज द टू डाइपोल्स आर इन दिस वे, दैट इज द P1 P2, और उनके बीच का डिस्टेंस समझो r है. सो इन दैट केस फोर्स इज रिटन एज अ, सिर्फ नोट करके रखना अपने नोट में, that is a 3k1, this is 3k p1 p2 upon r to the power 4. इस तरह से r to the power 4 है. और समझो एक डाइपोल ऐसे है, समझो दिस इज अ p1 है, और दूसरा डाइपोल समझो ऐसे है, दैट इज अ p2 है, और समझो यहाँ से इसका मिड पॉइंट का डिस्टेंस अगर r है, तो इक्वेशंस फोर्स का ये लिख लेना आप लोग, दैट फोर्स इक्वेशंस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ. फोर्स इक्वेशन इज, इट इज अ 2, 3 की जगह पे सिर्फ, सो दैट इज अ P1 P2, थोड़ा देख लो, मैं थोड़ा रफी काम कर रहा हूँ. ओके, डिवाइडेड बाय r टू द पावर 4. सेम इक्वेशन, सिर्फ एक कोएफिशिएंट चेंज होते रहते. दैट इज अ 6, इसके लिए कोएफिशिएंट है, दूसरे के लिए 3 है,
और थर्ड के लिए है दैट इज अ 2। तो इस तरह से ओरिएंटेशंस वाले कुछ है, आप थोड़े नोट करके रखो इक्वेशन, शायद काम में आ जाए। देखो 42 तो शायद हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया हुआ है, उसी बेस पे है। आपको बोला गया कि भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है दैट इज अ 2 kpr डिवाइडेड बाय, हमें यह आना चाहिए दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट, दैट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर फोर्स लिखना था, हमें मालूम है व्हाट इज द फोर्स, फोर्स on any charge which is placed at this point that is at a distance r is equal to q into e, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेस्ट पार्ट है कि q1 कूलम देके रखा है यूनिट पॉजिटिव, सो दैट इज अ 1e, मतलब जो फोर्स है वही e का इक्वेशन, तो f इज इक्वल टू दैट इज अ, यही इक्वेशन फोर्स का भी बन जाएगा दैट इज अ 2 kpr डिवाइडेड बाय इट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही फोर्स का इक्वेशन। अब आपको दो कंडीशंस दी है तो दो इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है। सो लुक एट दैट कि भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 0.1, द फोर्स इज 0.025, मतलब दो इक्वेशंस बनने वाले हैं कि फोर्स बनता है 0.025 न्यूटन्स, ठीक है, दैट इज अ 2k, ठीक है, इनटू p इज अ p, डाइपोल मोमेंट दिया नहीं, कब, जब 0.1 मीटर पे रखा गया तब, डिवाइडेड बाय it is a 0.1 square minus it is a square, correct or not, a square, ठीक है, r square minus a square, square रह गया यहाँ पे भाई, don't forget this square, okay, square is there, square is missing, it's a square, corrections please, it is a square, ठीक है, square, ये एक इक्वेशन बनता है। और दूसरा कौन सा इक्वेशन बनता है, there is another equation is that कि फोर्स वो 0.002 न्यूटन हो जाता है, लेकिन कब, when the distance is a 0.2 meter है ना, it's a 0.2 divided by that is a 0.2 square minus a square by, correct or not। तो इस तरह से है। अब आपको क्या करना, what you have to do is basically how to take the ratios of these two equations and how to solve for the a, pp तो कैंसिल हो जाएगा, so get the a मिलेगा, a का कुछ आंसर मिलेगा। अब a का आंसर मैंने सॉल्व करके रखा है, वन सॉल्विंग टेकिंग द रेशियोज एंड ऑल, यू विल गेट द a इज अ 0.05, लेकिन डाइपोल लेंथ a नहीं होती है, डाइपोल लेंथ इज अ 2a होती है, डाइपोल लेंथ इज अ 2a होती है, मतलब इसका डबल हो जाएगा, सो दैट इज अ 0.1 मीटर, सो आंसर इज अ सी आंसर हो जाएगा, आंसर इज अ सी आंसर। So I'm sure you are through in this questions also, which is the 43rd questions। चलो, according to the given orientations, it's very clear कि इक्विलेटर ट्राइंगल है जिसका लेंथ L दे के रखा है। चलो, ये आपका प्लस क्यू, दिस इज ऑल्सो प्लस क्यू, और माइनस 2q को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, मैंने क्लास में भी दिखाया था, इट्स अ माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, ओके। सो से दिस इज वन डाइपोल दैट इज अ p, दिस इज अनदर डाइपोल विच इज ऑल्सो p, क्यू, क्योंकि लेंथ तो L है। सो ये p की वैल्यू क्या होगी, पहले वो लिख देते हैं, सो दैट इज अ p इज इक्वल टू 2a, 2a यहाँ पे L है तो इट इज L इंटू क्यू है, 2L नहीं, इट इज L इंटू क्यू, सो दैट इज अ डाइपोल मोमेंट। और क्या नेट जो है, द नेट वुड बी इन दिस डायरेक्शंस, या श्योर, नेट ऐसे चलेगा, दैट इज अ पी नेट, ओके, करेक्ट और नॉट, इट इज अ पी नेट, ऐसे चलेगा, या दैट्स अ पी नेट, हम जानते हैं। सो देयरफॉर पी नेट या पी रिजल्टेंट, जो भी बोलना है बोलो, पी नेट इट इज इक्वल टू दैन इट्स अ पी स्क्वायर प्लस 2p square, that is a p into p multiply by cos of angle, that is a 60, which is a cos pi by 3, हाफ होगा, तो हाफ कैंसिल, 2p square प्लस प्लस 2p स्क्वायर होगा, और 2 और ये cos 60 इज अ हाफ, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, so that is a 3p square, so it is a under root 3p, मतलब it is a under root 3, it is a L Q, it's a simple answer, so answer is a, कौन सा है, C option है, so option C is the right options। So you may have a trouble in this questions, but it is a rather easy questions है, कोई खास बात नहीं है, क्लास में आपको बताया गया है, मैंने एक डेरिवेशंस के तौर पे भी जैसे लिखवाया गया था, तो देखो सिंपलेस्ट वे में मैं करवाता हूँ, क्या है सुनो, इट्स अ माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ओके, दिस इज अ मिड पॉइंट ओ। अब यहाँ से एक पॉइंट दे के रखा है, लुक एट दैट, एक पॉइंट हमें दे के रखा है, कोई भी ऐसा ले लो, दैट्स अ पॉइंट पी, ये यहाँ पे है,
विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, रहने दो उसको, ओके 20 सेंटीमीटर, एंड मेक्स एन एंगल पाई बाय 3 विद द एक्स एक्सिस, मतलब इसको ये एक्स एक्सिस लिया गया है, दिस इज योर ओरिजिन है, तो ये जो एंगल है दिस एंगल इज गिवन दैट इज अ पाई बाय 3 है। बोला गया यहाँ पे जो P पे जो नेट फील्ड होगा वो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। अब देखो ये देखो, सुनना मैं अलग कलर से दिखाने की ट्राई करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए, वैसे क्लास में थोड़ा अलग किया था, उससे लोग येलो लाइन देखना से, दिस इज योर E प्लस होगा, या दैट्स E प्लस, करेक्ट नॉट। और इसी तरह से ये अगर देखें तो क्या ये मेरा E माइनस होगा, दैट्स E माइनस, तो इन दोनों का बीच का ये आपका E नेट होगा। भाई आर यू फॉलोइंग, दिस इज E नेट, तो ये मेरा E नेट होगा। अब इन्होंने कहा कि ये जो E नेट है उसको एक्सटेंड करो, दिस E नेट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल बनाता है। अच्छा ठीक है, तो आपको ये पूछा है कि व्हाट इज दैट, ओके। अब हमारा इक्वेशंस क्या कहता, सुनो अब इक्वेशंस पे आते हैं। हमने कहा है कि समझो ये जो OP लाइन, जो दिस OP लाइन, उसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो उसके साथ में E नॉट जो एंगल बनाए थे दैट एंगल इज मार्क्ड एज एन अल्फा, और ये हमारे पास इक्वेशन है कि दैट इक्वेशन, जिनको इक्वेशन क्लियर नहीं हो नोट ओपन करके इक्वेशन को, tan अल्फा इज इक्वल टू दैट इज हाफ ऑफ, फिर tan ऑफ, इट इज हाफ ऑफ tan ऑफ व्हाट, tan ऑफ दिस एंगल, tan ऑफ दिस एंगल, हम लोग वहां पे थीटा बाई 2 लिया, अभी मैं थीटा बाई 2 नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि थीटा ऑलरेडी ये एंगल लिया गया, सो दैट इज अ हाफ ऑफ tan ऑफ दिस एंगल, सो दैट इज अ tan ऑफ अ पाई बाई 3, ये होगा, एंड 10 पाई बाई 3 इज बेसिकली ये है ना, ये दिस इज अ tan बाई, तो दैट इज अ √3 होगा, 10 पाई बाई 3 इज अ √3, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू द √3, इट्स अ √3, tan अल्फा इज इक्वल टू √3 होगा भाई, करेक्ट और नॉट। तो देयरफॉर अल्फा कितना होगा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू, इट इज अ tan इनवर्स ऑफ ए √3। अच्छा, अब थीटा जो है एक्सटीरियर एंगल है, उसके लिए भी एक इक्वेशन आपको दे के रखा है, क्या है कि देखो ये देखो पाई बाई 3, मैंने ऐसे लिखा पाई बाई 3 प्लस इट इज अ पाई बाई 3, एक्स्ट्रा एंगल थ्योरम लगाएंगे, पाई बाई 3, सुनो ये एंगल, दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, चेक द डायग्राम, इफ दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल अल्फा है, तो क्या ये एंगल भी तो अल्फा ही होगा, सो देयरफॉर पाई बाई 3 प्लस अल्फा इट इज इक्वल टू थीटा, इट इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस अल्फा, अल्फा आपका tan इनवर्स √3 आ चुका है, सो देयरफॉर फाइनल आंसर इज अ, इट्स अ पाई बाई 3 प्लस इट इज अ tan inverse of a √3 and that is equal to theta, ये आपका आंसर है। अब ये आंसर आप फाइंड आउट करो, ये आंसर कहाँ पे है, सो दैट इज अ ऑप्शंस डी है शायद, हाँ इट्स ऑप्शंस डी, ऑप्शंस डी इज द राइट आंसर, तो एनलार्ज करके देखते हैं, या इट्स ऑप्शंस डी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शंस डी। तो ये इक्वेशन बेस पे कुछ नहीं, गिवन P and E, तो भाई टॉर्क इन ए वेक्टर फॉर्म, it is a P cross E, it's a why, because it's a P sin theta for the cross product, sin theta for the cross product। तो आपको P का वैल्यू दिया है, आपको E का वैल्यू दिया है, दोनों में 10 to the power -7 10 to the power, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। तो P क्रॉस E 3/3 वेक्टर होता है, तो कैसे सॉल्व करना होता है आपको मालूम है, सो देयरफॉर इट इज अ P इज अ 10 to the power -7, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, 5i कैप प्लस j कैप -2 कैप, ठीक है, क्रॉस 10 to the power 7 i कैप प्लस j कैप प्लस इट इज अ k कैप, प्लस और माइनस, लेट्स मी कंफर्म, नो इट्स अ माइनस, सॉरी इट्स अ -1, सो इट इज अ माइनस k कैप, भाई करेक्ट और नॉट, ऐसे दिया हुआ यहाँ से, दैट इज अ माइनस k कैप, दैट इज द क्वेश्चन नंबर, थोड़ा साइन चेक कर लेते वरना आंसर आएगा नहीं हमारा, सॉरी इट्स अ प्लस है, ये डायग्राम में भी दिख नहीं रहा, सॉरी इट्स अ प्लस है, चेक योर डीपी, दिस इज अ प्लस, ओके ये प्लस है, ओके सो दैट इज अ प्लस। अब ये तो 3/3 हो गया, सो दैट 10⁻⁷ 10⁻⁷ तो कैंसिल, उसको सॉल्व करना आपको आता है, जिनको नहीं आता देख लो, i j k 5 1 -2 एंड दिस इज 1 1 एंड 1, ठीक है, ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, कैसे लिखना, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, दिस इज i इज अ प्लस, j इज अ -1, k इज अ प्लस, ऐसा करके मैंने करवाया था, इज दैट क्लियर, तो इस तरह से करते हैं, तो जब ऐसा करेंगे तो आपका कुछ आंसर इस तरह से आएगा, 3i माइनस इट इज़ अ 7j, चेक कर लेना,
plus it is a 4k. Okay, fine. So find the magnitude of a torque, that is a under root 3 square plus this square, so that is a under root कुछ 74 होता है, and that is equal to 8.6 Newton meter. It's a Newton meter. So 8.6 है answer. Answer is a A. So A is the correct answer. Next one, it's a very easy. Torque 2 is equal to P into E. ठीक है. So okay, P into E. Okay, तो P it is equal to dipole length 2a into Q E sin theta. ठीक है. टॉर्क कितना दिया हुआ है भाई? टॉर्क इज गिवन, दैट इज 8√3. फिर 2a लेंथ ऑफ द डाइपोल दिया हुआ है. क्या लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 4 सेंटीमीटर. सो 4 इंटू 10⁻⁻2 लिखना पड़ेगा. Q अननोन है जो फाइंड आउट करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 4 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻5. हाँ, 10⁻5. So 10⁻5 multiply by sine of, that is 60√3/2. आप डायरेक्ट कर सकते हो. तो सॉल्व द इक्वेशंस फॉर Q. तो Q आपका कुछ 10⁻, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -3 कूलम आता है, मतलब इट्स 1 मिली कूलम. आंसर इज 1 मिली कूलम. दैट्स एन ऑप्शन B. Based on the equations, dipole moment given 2 into 10⁻⁸. देखो ये पॉइंट है आपको, दिस इज द पॉइंट वेयर फील्ड इज टू बी फाउंड आउट. देखो ये डिफरेंट कलर सर्कल, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड R दिया है, 60 दिया. तो कुछ नहीं, इक्वेशन आपको डिराइव करके क्लास में दिखाया था. KP/R³ 1 + 3 cos² थीटा. सारी वैल्यू लगा दो. K 9 × 10⁻9 P सब कुछ दिया है. तो आंसर उसका सॉल्व करेंगे. R की जगह पे 1 मीटर वगैरह यूज़ करते हैं, तो इट इज़ समवेयर अराउंड 238.1 जितना कुछ आंसर आ रहा है. इट्स इतना कुछ न्यूटन पर कूलम आ रहा है. ओके, सो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी आ रही है न्यूटन पर कूलम. तो ये सॉल्व कर बेस्ड ऑन इक्वेशन ओनली. अच्छा, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली दिस इज द चैप्टर लेसन्स 2 क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं. इलेक्ट्रिक डाइपोल दिस 1 माइक्रो कूलम चार्ज दिए है, सेपरेटेड बाय दैट Q गिवन. ओके, 10⁻6 Q दिया है आपको. डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 × 10⁻2 मीटर. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपको दे के रखा है. वर्क डन फॉर रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू. अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या, सुनो, ये -Q, ये आपका +Q, एंड सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब आपका थीटा जब 0 होता है तब हम कहते हैं कि दिस इज एट इक्विलिब्रियम, राइट. अब पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की जो इक्वेशंस नेक्स्ट चैप्टर में होगा, दैट इज P cos थीटा. लाइक टॉर्क इज P sin थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी P cos थीटा होता है. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 to θ2 इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, जो हमारा अगले चैप्टर का इक्वेशन है. तो इस इक्वेशन में सारी वैल्यू लगा दो. जहाँ पे आप 2a जो है, ये 2a है, दैट इज 2 सेंटीमीटर. a नहीं, दैट इज 2a. डाइपोल लेंथ इज 2a होता है, सो दैट इज 2 सेंटीमीटर लगा दो. दैट इज 2 × 10⁻2 लगा दो. θ1 आप लोग 0 ले लेना और θ2 आप लोग 180 लेना. सो टेक दैट θ2 इज 180 एंड पुट दैट वैल्यू. Q का वैल्यू जो 10⁻6, ये सॉल्व करो तो ये होगा, दैट इज 4 × 10⁻3 जूल होगा. ओके, सो इट्स 4 × 10⁻3 जूल. दैट इज आवर ऑप्शंस ए एक्चुअली देके रखा है. नेक्स्ट वन इज अदर इजी. देखो 3 चार्जेस है, +Q, -2Q एंड +Q आर सिचुएटेड एट. देखो एक +Q यहाँ पे मान लो ये आपका है, सो y एक्सिस उसका सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही है, दैट इज 0 है 0. -2Q तो ओरिजिन पे है, दैट इज 0 0 एंड 0 पे ओरिजिन पे, कोई फर्क नहीं पड़ता. +Q जिसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट है, दैट इज a 0 एंड 0 ऐसे रखा है. तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ये तो आप लोगों ने कर दिया होगा. उससे दोनों का डाइपोल मोमेंट के बारे. सही, पहली बात तो ये जो डाइपोल मोमेंट जो P यहाँ पे लिखेंगे, इट इज़ नॉट नाउ 2a, इट इज़ a × Q है, क्योंकि डाइपोल लेंथ यहाँ पे AQ बन जाती है. सो एज दिस डाइपोल मोमेंट इज ऑल्सो इट इज़ a × Q. तो दोनों का नेट ये रहा आपका, दैट इज़ P नेट होगा. भाई होगा कि नहीं ये P नेट? यस, इट्स P नेट. दोनों बराबर है तो क्या सीधा लिख देंगे, चलेगा. दैट इज √2AQ
इट इज़ √2AQ सीधा निकल आएगा ऐसे, सो दैट इज़ √2AQ, ये है हमारा करेक्ट और नॉट, मतलब √2P है, सो दैट इज़ √2AQ बिकॉज P इज AQ, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो 45 पे चलेगा। तो ये किस में से पास होने वाला है, दैट इज सर्टेनली गोइंग टू पास थ्रू द एक्स वाई एक्सिस एंड एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू ऑल्सो ए 45 डिग्री पे, तो ए से पास होगा, जेड कोऑर्डिनेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे भाई। ये अगर समझो बराबर बाइसेक्टर है दैट इज एट 45 डिग्री, तो ये जो लाइन है ये किस में से पास होगी, ये लाइन को ऐसे एक्सटेंड करेंगे, सो दिस सर्टेनली पासिस थ्रू दिस पॉइंट, दैट इज देख लो ये मैं रफ में दिखा रहा हूँ, सो दैट सर्टेनली पासिस थ्रू द ए जेड कोऑर्डिनेट को भूल जाइए, जीरो ही करना है, एग्री और नॉट। सो दिस आंसर इज अ बी होगा, ये कंडीशंस के हिसाब से तो हमारा बी आंसर जाएगा, राइट, दैट इज अ बी, ए जीरो में से पास हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। सो दैट इज अ 50th क्वेश्चन। भाई ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वेयर ऑल द वैल्यूज आर गिवन। चलो सुनो, एक्सिस पे देने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल की, ये इक्वेशन से चलेगा, यस, इक्वेटोरल लाइन पे ये इक्वेशन से चलेगा, तो दोनों में ये सारे वैल्यू पुट करो और आंसर को फाइंड आउट करो, ठीक है। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है, यू विल गेट द आंसर एज अ ए कुछ आंसर आ रहा है भाई, जस्ट सॉल्व, इट्स ए, आंसर एज अ ए, आंसर ए होगा। जो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ वैल्यू पुटिंग तो है, सो जस्ट पुट द वैल्यू एंड सॉल्व। 51th क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द थियरी, वी नो दैट कि जो भी कंडक्टर होगा फील्ड लाइंस ऑलवेज एंटर और लीव द कंडक्टर एट अ 90 डिग्री, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका ऑप्शंस यही फील्ड लाइन ठीक होगी, सो दैट मीन्स दैट दिस वन इज द राइट आंसर। फील्ड लाइंस कंडक्टर को ऑलवेज 90 डिग्री पे ही अंदर जानी चाहिए, बाहर आनी चाहिए, so we know that the field lines are entering or leaving the conductor at always a 90 degree, tangential component is not allowed, otherwise charges start moving, you know this, ठीक है। so right option is a D। next questions that is a unit, ये तो कोई question ही नहीं है, that is a Newton per coulomb electric field unit, so I skip this questions, it's a theoretical one, electric field units, so okay, that is a now next questions is a 53। तो भाई डेंस फील्ड लाइन जहाँ पे होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, so look at that, A and C are the region of a strong electric field, separations equal दिखाया है A और C पे, मतलब A और C पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगी, लेकिन B पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सेपरेशंस बहुत ज़्यादा है तो वीक हो गया, so that is also the simplest questions। 53 questions, options देख लो। next question is that is a 54th questions, कुछ मार्क किया, पूछा है कि कहाँ पे नॉट जीरो है, भाई देख लो यहाँ पे स्टूडेंट्स गड़बड़ कर जाते हैं, नॉट जीरो बोला है कि जीरो नहीं होना चाहिए, सारे डायग्राम का एनालिसिस करो तो समझ में आएगा कि नॉट जीरो, स्पेशली कहाँ पे नहीं जीरो होता है वो देखना है आपको, तो हम देखेंगे कि ये देखो, ये तो क्यू क्यू से पहला डायग्राम फॉलो कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन, ये एक दूसरे को कैंसिल करे, ये भी एक दूसरे का फील्ड को कैंसिल करे, ये भी कैंसिल करे, सो दैट इज अ जीरो, इसका जीरो होगा, ठीक है। 2 में देखिए यही सही ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन, ये सही ऑप्शन है। क्यों, देखो Q और माइनस क्यू का डायग्राम में दिखाऊं, Q और माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड जो चलेगा वो किस तरह से चलेगा आपका नहीं, सो सेंटर पे पूछा है ना, तो Q और माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे ऐसे चलेगा, ठीक है, ये Q एक दूसरे को कैंसिल करेंगे चलेगा, लेकिन ये Q और ये Q का इस तरह से चलेगा, सो देयरफॉर डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा है, एक ये E है, ओके, और दूसरा ये E है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो ही नहीं सकता, द रिजल्टेंट वुड बी इन दिस डायरेक्शन, तो दैट इज अ E नेट, सो राइट ऑप्शन इज दिस वन। स्टूडेंट्स बहुत बार है ना ये फोर्थ डायग्राम में कंफ्यूज रहते हैं, फोर्थ डायग्राम में सुनो, ये 2Q और Q का अगर आपको मालूम होगा, मैंने एक क्लॉक वाला प्रॉब्लम किया था, मैंने कहा था कि नेट रिजल्टेंट फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शंस और इज टुवर्ड्स द स्मॉलर Q, तो इसका Q ऐसे चलेगा, दैट इज अ मतलब E ऐसे चलेगा स्मॉलर, क्लॉक वाला प्रॉब्लम याद होना चाहिए, इसका और मतलब इसका एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलेगा और एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा चलेगा, जब भी दो चार्ज दिए हुए थे तो और सिमिलर चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, बराबर, घड़ी वाला प्रॉब्लम हमें मालूम है। तो फोर्थ डायग्राम को देखो, यहाँ पे फोर्थ डायग्राम कैसे होगा सुनो, फोर्थ डायग्राम का फील्ड ऐसे बनेगा, एक ई ऐसा, एक ई ऐसे और एक ई ऐसे, ऑल आर एट एन इक्वल एंगल्स,
दैट इज 120 120 120, तो उसका रिजल्टेंट तो जीरो ही आने वाला है, सो दैट रिजल्टेंट इज ऑल्सो जीरो। आई होप इट्स क्लियर। फोर्थ डायग्राम को स्टडी करना, फोर्थ डायग्राम को स्टडी करना है, ठीक है। चलो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पावर डिस्टेंस आर ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल इज ई जीरो, ठीक है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस टू आर बट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, सी ई एक्सिस, तो ई एक्सिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वेशंस, दैट इज सॉरी 2 kp अपॉन एट अ डिस्टेंस कोई भी ले लो r, उन्होंने दिया भी है, दैट इज r, ये रहा मेंशन किया, सो दैट इज अ 2 kp अपॉन r क्यूब, ठीक है। और परपेंडिकुलर जब बात होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो 2 निकल जाता है, इट इज अ kp, लेकिन अभी डिस्टेंस कितना कर दिया है, डिस्टेंस इज अ 2r कर दिया है, सो डिस्टेंस इज अ 2r, सो दैट इज अ 2r क्यूब। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, दैट इज अ ई एक्सियल अपॉन ई परपेंडिकुलर, ठीक है। करेक्शन, थोड़ा सिंबल मैंने गलत लिखा है ना, मैं करेक्शंस कर देता हूँ। ई परपेंडिकुलर, ये अगर रेशियो लेंगे, सो टेक दैट रेशियो, दैट इज अ 2 kp बाय r क्यूब, ये वाला ये टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो थोड़ा रेशियो देखे देखो जो, दैट इज अ 16 आ जाएगा, बराबर ना। 2 kp कैंसिल, 1 अपॉन r क्यूब ऑल्सो कैंसिल, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 8, सो दैट इज अ 16, करेक्ट। बट दिस ई एक्सियल इज गिवन, दैट इज अ E0, क्वेश्चन में देखिए। So therefore E0 upon E perpendicular, it is equal to 16. Hence E bisector, that is a perpendicular, is equal to E0 by 16 आना चाहिए। So E0 by 16 है क्या? Okay, so that is a E0 by 16, लेकिन यहाँ पे दो है यहाँ पे, that is a E0 by 16 plus also E0 by 16 minus also, तो गलत, ऑप्शन ए नहीं होगा, आई एम करेक्टिंग, क्योंकि ये माइनस E0 बाई 16, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, चलो देखो देखो इन्होंने ये क्यू ऐसे दिया है, स्केलर में भी क्यू एक है, समझ में नहीं आ रहा, दैट इज अ माइनस क्यू एंड इट इज अ प्लस क्यू। जब बाइसेक्टर की बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट ऐसे चलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलता है, राइट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो राइट ऑप्शन आपको लेना होगा डायरेक्शंस के साथ में माइनस E0 बाई 16, तो ऑप्शन बी के लिए जाना आप लोग, ठीक है, माइनस E0 बाई 16 करना, क्योंकि साइन के साथ में मेंशन किया है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस ऑन द बाइसेक्टर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑफ अ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट से उल्टा चलता है,